Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students, how are you all? I hope you all are fine. It's a time to learn computer science. You know very well, computer is an electronic machine that is used to solve our problems according to the given instructions. We can also use computers in our daily life for different purposes. So the importance of computer cannot be denied. We are going to start chapter number 6, which is named as table and query, where table is a collection of related data organized in rows and columns, and query is a statement that extracts specific information from database. Query also allows you to view and analyze data in many different ways. We can also say that query is a stored question, or it may be in the form of a request. Today our topic is field properties. You know that fields are also called columns or attributes. Field की properties को हम set कर सकते हैं according to our requirement. Properties for each field are set from the bottom pane of the design view window. Some of the properties are given here: field size, format, number format, currency format, date format, yes, no, default value, indexes, field validation rules and input mask. We will learn all these properties one by one. First one is field size. हम फील्ड में किस किस्म का डाटा एंटर करना चाहते हैं और कितना डाटा एंटर करना चाहते हैं, इसका साइज सेट कर लिया जाता है. फॉर एग्जांपल, अगर हम कोई टेक्स्ट, कोई अल्फ़ाबेट एंटर करना चाहते हैं तो उसके लिए करैक्टर सेट कर लिए जाते हैं कि हम इतने करैक्टर्स एंटर करेंगे फील्ड में. लेकिन अगर हम कोई नंबर एंटर करना चाहते हैं तो इसके लिए डिफरेंट ऑप्शंस हो सकते हैं, वो हम बाद में देखते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल लुक एट दिस. Field size is used to set the number of characters needed in a text or number field. The field size is set in exact characters for text type, but options are given for number. तो नंबर के लिए कुछ ऑप्शंस हम यूज़ करते हैं. These are, अगर हम पॉजिटिव इंटीजर्स को एंटर करना चाहते हैं किसी फील्ड में बिटवीन 1 and 255, तो इसके लिए हम डाटा टाइप यूज़ करेंगे बाइट. But if we want to enter positive and negative integers between -32,768 and 32,767, इस रेंज के दरमियान अगर हम पॉजिटिव या नेगेटिव नंबर्स को फील्ड में एंटर करना चाहते हैं तो इसके लिए हम इंटीजर डाटा टाइप यूज़ करेंगे. सिमिलरली we use long integer data type to enter larger positive and negative integers between the given range. गिवन रेंज के दरमियान में से अगर हम कोई भी बहुत लार्ज पॉजिटिव या नेगेटिव नंबर को एंटर करना चाहते हैं तो इसके लिए हम लॉन्ग इंटीजर डाटा टाइप यूज़ करेंगे, और ये बाय डिफ़ॉल्ट पहले से सेट होती है लॉन्ग इंटीजर डाटा टाइप. नेक्स्ट इज सिंगल. सिंगल प्रिसीजन फ्लोटिंग पॉइंट नंबर occupies 32 bits in memory and double precision floating point number occupies 64 bits in memory, and decimal allows for precision and scale property control. Next property is format. It conforms the data in the field to the format specified in the format property. इसमें हमने given format के अकॉर्डिंग डाटा डिस्प्ले करवाना होता है. हम जो भी फॉर्मेट सेलेक्ट करेंगे उसी के अकॉर्डिंग हमारा डाटा डिस्प्ले होगा. You can see a table on your screen. Here 4 fields are given: format, datasheet entry, display and explanation. तो given format में से हम जो भी सेलेक्ट करेंगे उसी के अकॉर्डिंग हमारा डाटा डिस्प्ले होगा. सबसे पहले आप फर्स्ट फील्ड में फॉर्मेट में देखें, फर्स्ट रो. वो यूज़ @ साइन. सबसे पहले हमने 3 साइन यूज़ किए, फिर डैश, और इसके बाद दोबारा से हमने 4 साइन यूज़ किए. फॉर एग्जांपल, अगर हम डाटा एंटर कर रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7, तो इस फॉर्मेट के अकॉर्डिंग हमारा डाटा डिस्प्ले होगा. सबसे पहले 3 साइन थे तो 3 डिजिट्स डिस्प्ले होंगे, फिर डैश है तो डैश डिस्प्ले होगा, इसके बाद रिमेनिंग 4 डिजिट्स डिस्प्ले होंगे. तो हम कह सकते हैं इस फॉर्मेट के अकॉर्डिंग हमारा डाटा डिस्प्ले हुआ. हेयर @ साइन इंडिकेट्स रिक्वायर्ड करैक्टर और स्पेस. यहाँ पे ये साइन शो कर रहे हैं कि कितने करैक्टर्स हैं या फिर कितनी स्पेस है. इन द नेक्स्ट रो 3 साइंस आर यूज्ड, देन डैश, देन 3 साइंस अगेन, एंड एट द लास्ट एंड सिंबल इज यूज्ड. एंड सिंबल इंडिकेट करेगा कि कोई ऑप्शनल करैक्टर या फिर कोई स्पेस किसी भी डाटा के एंड पे है या नहीं है. फॉर एग्जांपल, हम डाटा एंटर कर रहे हैं 1 2 3 4 5 6, तो इस फॉर्मेट के अकॉर्डिंग हमारा डाटा डिस्प्ले होगा. सबसे पहले 1 2 3, फिर डैश 4 5 6. एंड सिंबल के ज़रिए
लास्ट पे हमें ये शो हो रहा है या तो कोई नंबर मिस है, ऑप्शनल है, हम लिखना चाह रहे हैं या नहीं लिखना चाह रहे, या फिर उसके एंड पे स्पेस है। इन द नेक्स्ट रो यू कैन सी लेस देन सिंबल। इस फॉर्मेट को अगर हम यूज़ करेंगे तो जो भी डाटा हम राइट करेंगे डाटा शीट एंट्री में, तो इस सिंबल के ज़रिए, इस फॉर्मेट के ज़रिए हमारा डाटा लोअर केस में कन्वर्ट होगा। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ वी राइट हेलो इन कैपिटल लेटर्स, then by using less than symbol our data is displayed in lower case. So we can say less than symbol converts characters to lower case. Similarly, greater than symbol converts characters to upper case. अगर हम डाटा किसी भी केस में एंटर करें तो ग्रेटर देन सिंबल के ज़रिए हमारा डाटा अपर केस में कन्वर्ट हो जाएगा, कैपिटल लेटर्स में राइट होगा। एंड इन द नेक्स्ट रो एट द रेट साइन स्लैश एंड देन एक्सक्लेमेशन साइन। यहाँ पे स्लैश साइन ये शो कर रहा है कि जो भी डाटा या जो भी करेक्टर हम स्लैश के बाद एंटर करेंगे वो वाला करेक्टर या वो वाला सिंबल एज इट इज़ हमारे डाटा के बाद होगा। फॉर एग्जांपल, अगर हम डाटा एंटर कर रहे हैं हेलो, तो स्लैश के ज़रिए हेलो के बाद एक्सक्लेमेशन साइन भी डिस्प्ले होगा, क्योंकि स्लैश के बाद एक्सक्लेमेशन साइन था, तो स्लैश के बाद जो भी साइन होगा वो एज इट इज़ हमारे डाटा के लास्ट पे प्रिंट होगा। Here slash sign adds character to the end, and in the last row add the rate sign slash and in the double quotation we write no data entered। अगर हम ये फॉर्मेट यूज़ कर रहे हैं और डाटा हम एंटर कर रहे हैं हेलो, तो स्लैश सिंबल के बाद राइट है नो डाटा एंटर। इट मीन्स हेलो के बाद नो डाटा एंटर, कुछ भी राइट नहीं करना, तो एज इट इज़ हेलो ही प्रिंट हो जाएगा। इस तरीके से हम कोई भी फॉर्मेट सेलेक्ट करके डाटा को डिस्प्ले करवा सकते हैं। Next is number format. We can select any one of the preset option from the drop down menu. यहाँ पे आप एक टेबल देख सकते हैं, यहाँ पे भी 4 फील्ड्स दी गई हैं, फॉर्मेट, डाटा शीट एंट्री, डिस्प्ले एंड एक्सप्लेनेशन। जो भी नंबर हम एंटर करेंगे वो अकॉर्डिंग टू फॉर्मेट डिस्प्ले होगा। सबसे पहले आप फर्स्ट फील्ड फॉर्मेट में देखें, फर्स्ट रो में ##, $0.00। अगर हम ये फॉर्मेट यूज़ करें और हम डाटा एंटर कर रहे हैं 1 2 3 4 5 6.78, तो यहाँ पे 0 हम कह सकते हैं, इस फॉर्मेट में 0 एक प्लेस होल्डर है जो डिस्प्ले करता है डिजिट्स को, और 0 को डिस्प्ले करेगा अगर हमारे डिजिट्स कम हैं। फॉर एग्जांपल, हमने डाटा एंटर किया 1 2 3 4 5 6.78, तो इस फॉर्मेट के अकॉर्डिंग डिस्प्ले कैसे होगा? सबसे पहले 3 हैश हैं तो 3 डिजिट्स डिस्प्ले होंगे, फिर कोमा है तो कोमा डिस्प्ले होगा, फिर 2 हैश हैं तो 2 डिजिट्स हमारे 4 और 5 डिस्प्ले होगा। इसके बाद 0 डिजिट को भी रिप्रेजेंट कर सकता है। अगर हमारे डिजिट यहाँ पे कम हो जाते, ख़त्म हो जाते, तो फिर यहाँ पे 0 शो होना था, लेकिन अभी हमारे डिजिट्स रिमेनिंग हैं तो हमारे डिजिट्स एज इट इज़ प्रिंट होंगे 6.78। तो इस तरीके से हमारा रिजल्ट डिस्प्ले होगा 1 2 3, 4 5 6.78। इन द नेक्स्ट रो यू कैन सी $, $#, 0.00। Here hash is a placeholder that displays a digit or 0 if there is none। यहाँ पे हैश एक प्लेस होल्डर है जो ये डिस्प्ले कर रहा है कि यहाँ पे कोई डिजिट भी हो सकता है, या फिर अगर कुछ भी नहीं है तो वहाँ पे 0 एंटर करेगा। फॉर एग्जांपल, हम डाटा 0 एंटर कर रहे हैं तो हमारा रिजल्ट कैसे डिस्प्ले होगा? $, वैसे ही आ जाएगा, और हैश ये शो कर रहा है कि 0 कुछ भी नहीं है यहाँ पे, और 0.00 एज इट इज़ प्रिंट होगा। एंड इन द लास्ट रो $.00% साइन गिवन नंबर को, जो भी डाटा हम एंटर करेंगे उसे 100 से मल्टीप्लाई करेगा और उसके साथ यही साइन शो करेगा। फॉर एग्जांपल, अगर हम एंटर कर रहे हैं 1 2 3, तो ये इस नंबर को 100 से मल्टीप्लाई करेगा और इसी के साथ परसेंट सिंबल को डिस्प्ले करेगा। वी कैन से परसेंट सिंबल मल्टीप्लाइज अ नंबर बाय 100 एंड एडिड अ परसेंट साइन। तो इस तरीके से हम कोई भी नंबर फॉर्मेट सेलेक्ट कर सकते हैं। Here we have to learn currency format. This formatting consists of 4 parts separating by semicolon. इस फॉर्मेट में हम 4 पार्ट्स यूज़ करते हैं और उन चारों को सेमीकोलन से सेपरेट किया जाता है। These are format for positive numbers, format for negative numbers, format for zero values and format for null values। हर करेंसी से पहले हम $साइन यूज़ करते हैं। एक करेंसी जब हमारी कंप्लीट होगी, फॉर एग्जांपल अगर पॉजिटिव वाली कंप्लीट होगी तो उसके बाद हम सेमीकोलन लगाएंगे, फिर नेगेटिव वाली राइट करेंगे, फिर सेमीकोलन, फिर ज़ीरो वैल्यू, फिर सेमीकोलन और फिर नल वैल्यू वाली।
You can see in format box, first of all we use $, $0.00. This is for positive value. After this we apply semicolon and then we write in parenthesis $, $0.00, and in the bracket we write red. After this we apply semicolon. This is the second part, and in the third part we use $0.00. This is for zero values, and in the last we write none in double quotation. This is for null values. Here positive values will be normal currency format. अगर पॉजिटिव वैल्यू हैं जिसके लिए हम $, $0.00 यूज़ करेंगे तो ये नॉर्मल करेंसी फॉर्मेट है. नेगेटिव वैल्यूज़ विल बी रेड इन पैरेंथेसिस. अगर हम कोई नेगेटिव वैल्यू एंटर करेंगे तो हमारा रिजल्ट डिस्प्ले होगा रेड कलर में और पैरेंथेसिस छोटी ब्रैकेट में. 0 इज एंटर्ड फॉर जीरो वैल्यूज़ एंड नन विल बी रिटन फॉर नल वैल्यूज़. नल मीन्स कोई भी अगर वैल्यू नहीं होगी तो इसके लिए हम नन राइट कर देंगे. नेक्स्ट इज डेट फॉर्मेट. You can see different types of formats to display the date. We can select any one of the given format. सबसे पहले फॉर्मेट कॉलम में चेक करें. फर्स्ट रो में 4 टाइम्स D डबल कोटेशन में कोमा, 4 टाइम्स M D डबल कोटेशन में कोमा, फिर 4 टाइम्स Y. इस फॉर्मेट को यूज़ करते हुए हम फुल डे नेम, फुल मंथ नेम, डेट और फुल ईयर को डिस्प्ले करवा सकते हैं. Here 4 times D means full day name, 4 times M means full month name, D means date, and 4 times Y means full year. You can see in display column, Monday is a full day name, comma January 1, 2001. यहाँ पे 4 times D से मुराद था कि मंडे फुल डे हमारा डिस्प्ले हो गया, फिर कोमा, फिर फुल मंथ नेम डिस्प्ले हुआ, फिर डेट 1, फिर कोमा और लास्ट पे 2001 फुल ईयर भी हमारा डिस्प्ले हो गया. सो वी कैन से दिस फॉर्मेट प्रिंट द फुल डे नेम, मंथ एंड ईयर. इन द नेक्स्ट रो यू कैन सी $D इन डबल कोटेशन कोमा, $M D इन डबल कोटेशन कोमा एंड देन $Y. इस फॉर्मेट के ज़रिए हम डेट और मंथ के फर्स्ट 3 डिजिट्स को प्रिंट करवा सकते हैं, 3 लेटर्स को, और ईयर के लास्ट 2 डिजिट्स हम प्रिंट करवा सकते हैं. You can see in display MON, JAN 1,01. यहाँ पे डे और मंथ के फर्स्ट 3 लेटर्स को हमने डिस्प्ले करवाया और ईयर के लास्ट 2 डिजिट्स प्रिंट हुए विच आर 01. एंड इन द लास्ट रो टुडे इज डबल कोटेशन में राइट है और लास्ट पे 4 टाइम्स D राइट है. तो जो भी डबल कोटेशन में राइट होता है वो एज इट इज़ डिस्प्ले होता है. टुडे इज़ एज इट इज़ डिस्प्ले होगा और 4 टाइम्स D का मतलब है फुल डे. तो यहाँ पे हम डे मंडे डिस्प्ले करवाना चाह रहे हैं, सो डिस्प्ले हो जाएगा टुडे इज़ मंडे. तो इस तरीके से हम डेट को किसी भी फॉर्मेट में डिस्प्ले करवा सकते हैं. नाउ यू हैव टू रिमेंबर दीज फॉर्मेट्स टू डिस्प्ले टेक्स्ट एंड नंबर इन द फील्ड. You have to give your best. Thanks to all of you for your cooperation. Allah Hafiz.